Hi, my dear students and viewers. Today we'll talk about one of the famous Indian fictional work, A God of Small Things, that is written by Arundhati Roy. Here is her picture. And she has been given a title of Goddess of Big Ideas. So obviously she is such a personality in Indian literature and English that can never be forgotten. Let's have biographical details. She was born as Susanna Arundhati Roy on 11/24/1961. So November 24 she was born in 1961. Her mother was Christian. Uh, she was known as Mary Roy, and she has been a well-known social activist. Her father was a Bengali Hindu tea planter. So just from the mother side, she got that spirit to become a social activist, and no doubt she is. As a 1 year old daughter, her parents got separated, and when she was 10 years old, she went to school. She was alone, no family member at all. So just try to understand what was her age when she started for struggling for herself. At the age of 16, she left home and lived in a squatters colony in Delhi. इस तरह से बहुत छोटी उम्र में ही उसकी जो स्ट्रगल है वो शुरू हो जाती है, और 16 साल की उम्र में जो है वो दिल्ली की एक कॉलोनी में रहना शुरू कर देती। शी स्टडीड आर्किटेक्चर इन दिल्ली। दिल्ली में जाके उसने शुरू में आर्किटेक्चर पढ़ा, वेयर शी मेट हर फर्स्ट हस्बैंड द आर्किटेक्ट Gerard the Cunha, then acted in several independent films and later married filmmaker Pradeep Krishan. So she married twice. 2 दफ़ा इसने शादी की, और दूसरी शादी जो है उसने फिल्म मेकर से की. फर्स्ट वर्कड विद अ टीवी कंपनी. पहले उसने टीवी कंपनी के साथ काम किया. A role in Messi Saab, the Banyan Tree TV series, उसके लिए भी इसने काम किया, in which Annie gives it those ones, और Electric Moon. इसमें भी. Now look at the title page of the novel, The God of Small Things, written by Arundhati Roy. Now let us have the introduction to the novel, and then afterwards we'll talk about different others perspectives of the novel. The historical context of God of Small Things. The God of Small Things takes place mostly in 1969 and 1993 in Emena, in the district of Kerala. Marxist ideas grew popular in Kerala soon after India's liberation from British colonial rule, and in 1967 the Naxalite party split off as a more radical communist group than the mainstream. यानी ये नावल जो है ये ज़्यादातर उन वाक़यात पर मबनी है जो 1969 और 93 के दरमियान में हैं, बिलखुसूस जो केरला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ. और मार्क्सिस्ट आइडियाज़ जो इंडिया जब ब्रिटिश रूल से आज़ाद होता है तो उसके बाद वो फैलना शुरू हो जाते हैं, और 67 में जब नक्सलाइट पार्टी सेपरेट होती है तो उसके बाद जो है वो ज़्यादा रेडिकल कम्युनिस्ट ग्रुप जो है मेन स्ट्रीम से भी ज़्यादा रेडिकल जो ग्रुप है वो हमें समझ आता है, मिलता है जब नक्सलाइट पार्टी सेपरेट होती है.
The growing social unrest from these labor movements affects the action of early novel. और यही इस चीज़ के इफेक्ट्स जो है हमें अर्ली इसमें नावल में नज़र भी आते हैं. द एंशियंट हिंदू कास्ट सिस्टम डिवाइडिंग अनटचेबल्स फ्रॉम टचेबल्स among other rules was abolished around 1950, but many Indians still clung to old tradition and the class divide. यानी 1950 में ये जो कानून था टचेबल और अनटचेबल वाला, इसको ख़त्म कर दिया गया. यानी अछूत वाले जो थे उस कानून को ख़त्म कर दिया गया. लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेडिशनल हिंदू थे वो इसको इस चीज़ पर अमल करते थे और इस तरह से लोगों को डिवाइड किया गया था कि वो अनटचेबल और टचेबल्स में. Some of the characters in the novel are also Syrian Christians, an ancient community in Kerala originating with Saint Thomas. कुछ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ केरला में रह रही है और जो सेंट थॉमस जो है उसके वहाँ से मानने वाले और यहाँ पे वो रह रहे हैं. इस नावल के इंट्रोडक्शन देखते हैं. God of Small Things is a debut novel of Indian writer Arundhati Roy. It is a story about the childhood experiences of fraternal twins whose lives are destroyed by the love laws that lay down who should be loved and how. And how much the book explores how small things affect people's behavior in their lives. The book also reflects its irony against casteism, which is a major discrimination that prevails in India. It won the Booker Prize in 1997. ये जो नावल है ये तो अरुंधति राय का डेब्यू वर्क है. यानी सबसे पहले उसने ये लिखा और ये नावल जो है वो ज़्यादातर जो ट्विंस हैं उन्हीं की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको कवर करता है. और ये वही है कि वो लव लॉज जो हैं उनको वो सीख रहे होते हैं कि किससे प्यार किया जाना चाहिए और कितना किया जाना चाहिए. तो ये इसमें जो है वो ये नावल इस बात पे भी बहस करता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ख़ासतौर पर लोगों का बिहेवियर जो होता है जिसमें वो मामूली चीज़ें देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है. इसके अलावा ये नावल जो है वो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में बात करता है और ये नावल इतना ज़्यादा मशहूर होता है कि इसको बुकर प्राइज़ मिलता है 1997 में. God of Small Things was Rai's first novel and only novel until 2017 publication of the Ministry of Utmost Happiness. 20 years later, she began writing manuscript of God of Small Things in 1992 and finished 4 years later in 1996. यानी ये नावल अरुंधति राय ने लिखा है. उसका पहला नावल था लेकिन उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस लिखने तक उसको 20 साल लग गए. ये नावल जो है इसको भी 1992 में लिखना शुरू किया अरुंधति राय ने और 1996 में इसको मुकम्मल किया. इस तरह से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस नावल को लिखने में 4 साल लगे. The potential of the story was first recognized by Pankaj Mishra, an editor with HarperCollins, who sent it to the 3 British publishers. पंकज मिश्रा जो है सबसे पहले उसने इस स्टोरी के अंदर पोटेंशियल फील किया और उसके बाद वो उन्होंने 3 ब्रिटिश पब्लिशर को इस नावल को पब्लिश करने के लिए भेजा. रॉय रिसीव्ड 5 lakh pounds in advance and rights to the book were sold in 21 countries. In 1913, Talkhiyan, a Pakistani television series based on the novel, was aired on Express Entertainment. इस नावल को पब्लिश होने से पहले जो है 5 लाख पाउंड जो है एज अ रॉयल्टी इसको मिलता है राइटर को और वहाँ पे ये पब्लिश होता है और 21 मुख्तलिफ ममालिक में ये पब्लिश होता है. फिर 2013 तक जो है तो 2013 में तलखियाँ नाम के एक ड्रामा सीरीज जो है वो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट चैनल जो उसने शुरू की वो बेसिकली इसी नावल पर मबनी सीरीज़ बनाई गई.
this novel basically got some extra credit for the writer also. Here is extra credit for God of Small Things, like The Sound of Music. As a child, Roy's family also made several car journeys to see The Sound of Music, as it was one of the few English films available. Roy says she did not like the movie much, but the pilgrimage to see it was like going to church or something. जो मिस रॉय की फैमिली है, उन्होंने काफ़ी कार पर जर्नी किया और जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है उसको भी महसूस करते रहे। इसी तरह से मूवीज़ पे भी जाया करते, लेकिन राय का अपना ये ख्याल है कि उसको मूवी कभी भी पसंद नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो ट्रैवलिंग पे जाना, जैसे कि पिलग्रिमेज पे जाना जो है वो उसको पसंद किया करती थी। Activism. Since the publication of God of Small Things and her subsequent fame, Roy has become an outspoken activist on many issues in India and throughout the world. Her opposition to a dam project in India even landed her in jail for a single symbolic day. ये नावल जब पब्लिश होती है तो उसके बाद अरुंधति राय को बहुत ज़्यादा फेम मिलती है और उसके बाद वो पॉलिटिकली एक्टिविस्ट के तौर पर भी नज़र आती हैं। और कई सारे जो ऐसे इश्यूज होते हैं जो वो इंडिया में भी उन्होंने हाईलाइट किए, बल्कि इंडिया में सिर्फ वो एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं देखेगी बल्कि पूरी दुनिया में वो एक्टिविस्ट के तौर पर देखेगी। बल्कि एक वक्त वो भी आता है कि उन्हें एक दिन के लिए सिंबॉलिक तौर पर जो है ना वो जेल भेजा जाता है, और वो उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि वो इंडिया कुछ डैम बना रहा होता है, उसके अगेंस्ट में वो उस बात को लेकर जो है ना वो बहस करती हैं और इसके लिए जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो अपनी मदर की तरफ से भी ये जर्म्स रखती है क्योंकि उसकी माँ भी एक एक्टिविस्ट थी, और इसको भी हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट के तौर पर नज़र आती हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक बुक लिखी जो इस पे है कश्मीर के मौजू पे, और अमूमन जो है ना वो कश्मीर के हक़ में और इंडियन जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आती हैं टीवी चैनल्स पे भी, और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लिखा भी है। और अमूमी तौर पे जो है वो कश्मीर के हक़ में और इंडियन जो पॉलिसीज़ हैं कश्मीर के हवाले से उनके अगेंस्ट में लिखती और बोलती नज़र आती हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।